Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we have discussed about types of colloids based on various properties, and we also discussed that on the basis of interaction between the disperse phase and dispersion medium, colloids are of two types: lyophilic sols or lyophobic sols. From the definition of lyophilic salts, we know that lyophilic salts are those colloidal salts which are prepared directly by adding disperse phase into dispersion medium. But lyophobic salts are those which cannot be prepared directly by mixing disperse phase into dispersion medium. We have to use special methods for the preparation of lyophobic salts. So today we are going to discuss methods of preparation of colloids. In this method we are going to discuss special method for the preparation of lyophobic salts. So there are two types of methods. These involve two methods. First is dispersion or disintegration. Dispersion or disintegration method, and second one is condensation or aggregation method. Condensation or aggregation method. So out of these two methods we will discuss one by one. First is dispersion or disintegration methods. Dear students, as the name suggested, disintegration, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन करना. सो दिस मेथड इन्वॉल्व या दीज मेथड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, दीज मेथड्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ bigger particles of suspension into range of colloidal particles. तो ये जो जैसे कि नेम है मेथड्स का, तो इस मेथड में हम बिगर साइज के सस्पेंशन के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. किस रेंज में? कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में. इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास क्या है? डिसइंटीग्रेशन बाय बॉल मिल. डिसइंटीग्रेशन यूजिंग बॉल मिल या डिसइंटीग्रेटर का यूज करके या बॉल मिल का यूज करके हम जो है कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मेथड द डिवाइस यूज्ड in this method is called ball mill or disintegrator और अल्ट्रा डिसइंटीग्रेटर भी हम बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सर्कुलर डिस्क्स which can rotate two circular discs which have very little gap between them and is capable of rotating 7,000 revolutions per minute and capable of rotating very fast
in opposite directions. In opposite direction. Particles of suspension are introduced between discs and made to rotate faster to get particles of colloidal range. So dear students, in this method we have a device that is called as ball mill. This ball mill consists of two circular discs which have very little gap between them and is capable of rotating very fast in opposite direction. पार्टिकल जो है सस्पेंशन के जो बिगर पार्टिकल्स हैं उनको डिस्क के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है. देन बॉल मिल इज अलाउड टू रोटेट फास्टली एंड देन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर कन्वर्टेड इनटू colloidal range. This is one of the methods from dispersion method or disintegration method we have studied. Second one is electro disintegration. So dear student, it is also one method of disintegration, but name में क्या आएगा, इलेक्ट्रो वर्ड आएगा. इसका मतलब क्या है, इट इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो है इसको हम कर सकते हैं. तो इस मेथड में देखिए क्या होता है. इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क. इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक आर्क होती है और इलेक्ट्रिक आर्क जो है इट इज प्रेजेंट और प्लेस्ड बिटवीन द टू मेटल इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज प्लेस्ड इन अ ट्रफ विच इज प्लेस्ड इन कंटेनर कंसिस्ट ऑफ वाटर. तो ध्यान से इसमें देखें इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन. सिंपली अगर बात करें इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क होती है जो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है और विच इज प्रेजेंट इन ए ट्रफ दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ वाटर. तो जो भी ये जो मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल्स. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटल्स के सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. तो गोल्ड सोल के जो गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. वेपर आर देन कंडेंस्ड इमीडिएटली. यानी कि इसमें क्या है, आइस कोल्ड वाटर है. आइस कोल्ड वाटर बात है ये. इट कंसिस्ट ऑफ आइस कोल्ड वाटर. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर गोल्ड सोल को हम प्रिपेयर करने के लिए गोल्ड मेटल को रखते हैं तो वो वेपोराइज हो जाती है, वेपर्स के बन जाते हैं. इमीडिएटली वेपर जो है आइस कोल्ड वाटर की वजह से क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो करके और वो कोलोइडल लेंस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस तरीके से जो है कोलोइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर हो जाते हैं. तो ये जो मेथड है दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्स ऑफ metals like gold, silver, platinum, etc. It consists of an electric arc placed between two metal electrodes present in a trough which is
present in a container या ice cold water bath। देखो ये मेथड जो है गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जो मेटल्स हैं उनके सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है, और वो एक ट्रफ में प्रेजेंट होती है, एक ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, क्लोज कंटेनर है ये, और विच इज फर्दर प्रेजेंट इन आइस कोल्ड वाटर बाथ, जिसमें आइस कोल्ड वाटर प्रेजेंट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड to electric arc, gold particles are converted into vapors, which are then immediately condensed in ice cold water, resulting in formation of colloidal range particles, So dear students, this is second method of preparation of salts. Third method is peptidation. Peptidation is a process of converting a fresh precipitate into colloidal particles by shaking it with a dispersion medium in presence of a small amount of suitable electrolyte. ध्यान से सुनेंगे, पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, किसके कन्वर्जन का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किसी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट हो उसको सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में शेक करके फिर वेरी स्मॉल अमाउंट जो इलेक्ट्रोलाइट की ऐड की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करते हैं जो कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। क्योंकि अगर जब तक हम स्मॉल रिक्वायर्ड अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ऐड नहीं करेंगे तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए पेप्टाइजेशन प्रोसेस को कराने वाला जो एजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम रेडिश ब्राउन कोलोइडल सॉल्यूशन फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेश प्रेसिपिटेट जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के, उसमें स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट फेरिक क्लोराइड की ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेकंड जो है सिल्वर आयोडाइड AgI, अगर उसके प्रेसिपिटेट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम ऐड करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तब हम जो है सिल्वर आयोडाइड के कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है देन वी हैव टू ऐड वेरी डाइल्यूट HCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन, एक तो ये डेफिनेशन से यहाँ से क्वेश्चन आता है। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इट इज बेस्ड ऑन द कोज ऑफ पेप्टाइजेशन, पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द कोज ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन का कारण क्या होता है। नेक्स्ट इज कोज ऑफ पेप्टाइजेशन, कोज ऑफ पेप्टाइजेशन किसी बुक में यहाँ पर Z है, किसी में S भी लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, एज we add small amount of electrolyte to freshly prepared precipitate। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालते हैं जो कि पेप्टाइजिंग एजेंट होता है। देन particles of precipitate
preferentially adsorb one of the ions, और कौन सा आयन, कॉमन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू precipitate preferentially adsorb one of the ions on it. As a result electrostatic repulsion takes place. between, इसके बीच में electrostatic repulsion between particles of precipitate takes place resulting in the formation of colloidal range particles. फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि कैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसके कोलोइडल सोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं। ये भी हमारे पास क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के। तो अब क्या है, जैसे ही हम इसमें क्या ऐड करेंगे, फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ऐड करेंगे, देन व्हाट वुड हैपन, इलेक्ट्रोलाइट और प्रेसिपिटेट में कौन सा आयन कॉमन है, फेरिक आयन, Fe3+ आयन कॉमन है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से Fe3+ आयन इन प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स के चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाते हैं। किस तरीके से, FeOH होल थ्राइस, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कॉमन आयन की बात करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है प्रेफरेंशली एडजॉर्ब हो जाते हैं इसके ऊपर, ऑन द प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स। ये भी हमारे पास क्या अनदर FeOH होल थ्राइस है, और इसके ऊपर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज के फेरिक आयन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं हमारे पास, एडजॉर्ब हो जाते हैं। देन क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, हीटिंग एंड ब्रेकिंग होगी। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हीटिंग एंड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। तो जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज साइज के प्रेसिपिटेट पार्टिकल जो है कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जो है वी कैन प्रिपेयर द कोलोइडल स्टेट पार्टिकल्स बाय यूजिंग पेप्टाइजेशन का यूज करके इस तरीके से हम कोलोइडल स्टेट पार्टिकल्स को प्रिपेयर कर सकते। सेकंड जो हमने एग्जांपल लिखा सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रिपरेशन करना, उसमें क्या होगा, AgI लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो Ag+ एडजॉर्ब हो जाएगा, अगर Ki इलेक्ट्रोलाइट लेंगे I- आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो जाता है। और इस तरीके से जो है फर्दर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हीटिंग एंड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस and resulting in the formation of particles of colloidal range. So dear students, we have studied 3 methods in dispersion or disintegration method. Next we are going to study condensation or aggregation methods. Second type is condensation or aggregation methods. कंडेंसेशन और एग्रीगेशन क्या होता है, इकट्ठा होना, एग्रीगेट करने का मतलब होता है इकट्ठा होना। इसमें क्या होगा, These methods involve joining of large number of small particles to form particles of colloidal range। यानी कि कोलोइडल रेंज से छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं और वो ज्वाइन हो करके कोलोइडल रेंज के पार्टिकल्स बना लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन मेथड बोलते हैं। इसके अंदर वेरियस मेथड, वी विल डिस्कस ओनली केमिकल रिएक्शन मेथड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाय डबल डिकम्पोजिशन, 2 बार डिकम्पोजिशन होता है, जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे डबल डिकम्पोजिशन होता है। इसमें क्या होता है,
आर्सेनियस ऑक्साइड जो है As2O3, when H2S gas is passed through it, then oxygen gas is replaced by sulfur. Oxygen is replaced by sulfur. Arsenious oxide is converted into arsenious sulfide और colloidal solution बन जाता है. सेकेंड है बाय रिडक्शन. ये जो मेथड है बाय रिडक्शन, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि रिडक्शन मेथड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं. देखो रिड्यूसिंग एजेंट दो तरीके से डिफाइन किया जाता है. एक तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर जो हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्ड क्लोराइड जो है व्हेन इट रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 यानी कि टीन क्लोराइड +2 स्टेट में है. यहाँ पर इसके ऊपर +2 चार्ज है. तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो ये क्या करेगा, गोल्ड यहाँ पर क्या +3 स्टेट में है, तो इसको +3 से 0 स्टेट में गोल्ड, इसको गोल्ड की क्या कर दी है, इसने गोल्ड की रिडक्शन कर दी है और खुद जो ऑक्सीडाइज हो गए +2 से किस में चला गया, +4 स्टेट में कन्वर्ट हो गया है. सेम यहाँ पर गोल्ड क्लोराइड को रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मल्डिहाइड का यूज करके भी प्रिपेयर किया जा सकता है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन देता है. तो HCHO जो है ऑक्सीजन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCOH फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और AuCl3 जो है Au में कन्वर्ट हो जाता है. लास्ट सिंपल है बाय हाइड्रोलिसिस. इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर. H2O में क्या होता है H+ और OH- जो है वो Cl को रिप्लेस कर देते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ colloids. Very important part we have discussed today. Next we will discuss about purification. अब देखो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने इन मेथड्स में पढ़ा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की प्रिपरेशन करने के लिए वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं. तो कई बार क्या होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो ज़्यादा ऐड हो जाती है या कम ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सोल जो है अच्छी तरीके से प्योर सोल नहीं होता. तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने के लिए. सो दिस मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स. सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल मेथड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू ट्राई टू लर्न एंड राइट इट फॉर योर गुड रिजल्ट्स. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.